کہ پرائم منسٹر صاحب کافی کنسرنڈ ہے، جیسے ہم سب لوگ کنسرنڈ ہیں آج جموں کشمیر کے حالات کو لے کے. جیسے کہ کل پھر پلوامہ میں ایک کیمپ کے اوپر جب کئی نوجوانوں نے جا کے حملہ کرنے کی کوشش کی، وہاں ایک لڑکا مارا گیا. آج مارننگ میں پولیس کا ایک کانسٹیبل ملیٹنٹ انہیں مار دیا. یہ اٹس اے میٹر آف کنسرن، سب کے لیے یہ کنسرن کی بات ہے، پرائم منسٹر کے لیے بھی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابہ رک جائے، جموں کشمیر جو ہے اس مصیبت سے باہر نکل آئے. اور انہوں نے بار بار کہا، اور ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ جو پی ڈی پی اور بی جے پی کی الائنس ہوئی ہے اس کا بیسس یہ تھا کہ جو واجپئی جی نے جموں کشمیر کے حوالے سے ایک ڈائلاگ یہاں بھی اور پاکستان کے ساتھ ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کیا ہے، اس کو آگے چلا کے جہاں انہوں نے چھوڑا تھا اس کو آگے چلا کے جموں کشمیر کی جو بھی سمسیا ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے، تاکہ جموں کشمیر کے لوگ عزت سے آبرو سے اپنی زندگی بسر کر سکے. اور یہ جو روز 2 سال 4 سال کے بعد جموں کشمیر میں اس قسم کے حالات خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کو بند کر سکے. اور اس میں مجھے خوشی ہے کہ مودی جی نے نہ صرف پہلے نواز شریف صاحب کو اپنی اوتھ سرمنی میں بلایا بلکہ خود لاہور چلے گئے. پر بدقسمتی کے ساتھ اس کے بعد پٹھان کوٹ ہوا. اور ابھی پچھلے دنوں میں جبکہ کشمیر میں اتنے حالات خراب ہوئے اور پاکستان کھل کے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس میں کوشش کر رہے تھے زیادہ پرووکیشن ہو، تو ایسے میں ہمارے ہوم منسٹر دوبارہ پاکستان چلے گئے ساک کا جو سمٹ ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. پر بدقسمتی سے پاکستان نے پھر ایک سنہری موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیا، بجائے اس کے کہ وہ راجناتھ جی سے مل کے بات کرتے. آپ روز بولتے ہو کشمیر کی بات کرو، کشمیر کی بات کرو. اگر ہمارے ہوم منسٹر وہاں آئے، اگر آپ کو کوئی بات کرنی تھی تو آپ ان کو عزت سے بلا کے بات کر سکتے تھے. پر انفارچونیٹلی جس طرح سے وہاں ان کے ساتھ جو ہوا، میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے. جو گیسٹ ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، جیسے آل پارٹی ڈیلیگیشن کے بارے میں ڈسکشن ہوا پرائم منسٹر سے، وہ بھی کوشش کریں گے وہاں لوگوں کو، دے ول آلسو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ. پر ہماری کوشش یہ ہے کہ 2008 میں حالات خراب ہو گئے، 2010 میں حالات خراب ہو گئے. حالانکہ 2008 اور 2010 میں جو ہوا اس کا ایک وجہ تھی لوگوں کے پاس کہ بھئی آپ نے غلط کیا ہے، اس کو صحیح کرو. آج جو ہوا شاید ملیٹنٹ انکاؤنٹر پہلے بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں اور کل بھی ہوں گے، پر اس کے باوجود لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ جمع ہو رہا تھا. اور آج مجھے لگتا ہے، مجھے امید ہے، جیسے مفتی صاحب بار بار کہتے تھے کہ مودی جی کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. اگر ان کے وقت میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر کبھی کچھ نہیں ہوگا. اگر واجپئی جی آگے آئے ہوتے اس وقت 2005 میں تو مجھے لگتا ہے ابھی جموں کشمیر کی سمسیا کافی دیر حد تک حل ہو گئی. تو میرا یہ ماننا ہے جو مودی جی نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا وہاں گئے، اور آج بھی وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. کیونکہ جو لوگ مر رہے ہیں، چاہے وہ پتھر بازی میں مر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کیمپ میں گھسنے میں مر رہے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں. کنسرن ہے. شاید اسی وجہ سے پچھلی بار مجھے غصہ بھی آیا، کیونکہ یہ وہ لڑکے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن جن گاؤں میں جاتی تھی تو ان کی مائیں میرے پاس آ کے ہاتھ جوڑ کے بولتی تھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، سیکورٹی فورس سے ڈرتا ہے، ٹاسک فورس سے ڈرتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ. اور ہم نے 2002 میں سرکار بناتے ہی لوگوں کو اس مشکل سے باہر نکالا تھا. کریک ڈاؤن ختم ہوئے، کوٹا ختم کیا، واجپئی جی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے، سیز فائر ہوا، حریت کے ساتھ بات چیت ہوئی. مگر کہیں نہ کہیں وہ سلسلہ رکا اور آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. پر مجھے امید ہے مودی جی 2008 یا 2010 میں جس طرح یو پی اے سرکار بعد میں بھول گئی، مجھے امید ہے وہ یہ اس چیز کو نہیں بھولیں گے. اگر وہ کہتے ہیں جموں کشمیر میں بات چیت ہوگی، سب کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. کوئی ایسے لوگ مقرر ہونے چاہیے جن کے اوپر کشمیر کے لوگ بھروسہ کریں کہ یہ جو بات کہیں گے وہ بات کہیں نہ کہیں تک پہنچ جائے گی. اسی طرح جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، میں ان کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ کے کشمیر کے لوگوں کے، وہاں کے جوانوں کے لیے ذرا بھی ہمدردی ہے تو یہ جو لوگ ہمارے جوانوں کو اکساتے ہیں کہ اگر آپ آرمی کیمپ پہ حملہ کرو، پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرو، مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، تو مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. آج بھی انہوں نے کال دی ہے، بادامی باغ جو آرمی کیمپ ہے
कैंप है वहाँ जल के घेराव करो। चाहते क्या हैं ये लोग? इसलिए हमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को, वहाँ के जवानों को बचाने के लिए, हमारे मुल्क को, क्योंकि इस वक्त खुशकिस्मती है, हमारे जो वजीर आजम हैं उनके साथ पूरी जमातें हैं, चाहे कांग्रेस हो, जनता दल हो, CPI, सब चाहते हैं जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद हो जाए, जम्मू कश्मीर के नौजवान इस मुसीबत से निकले, जम्मू कश्मीर में किसी माँ को अपने बेटे के लिए रोना ना पड़े। मगर बातचीत उन्हीं से हो सकती है जो बातचीत करना चाहे। जो लोग इस वक्त सड़कों पे नौजवानों को उकसाते हैं कि आप जाके कैंप के अंदर घुस जाओ, कैंप पे हमला करो, मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट नहीं है बातचीत से, वो खून खराबा चाहते हैं। मगर जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, जिनको ज़हनी तौर कोई आइडियोलॉजी उनकी अलग है, मुझे लगता है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बहुत संजीदगी से बातचीत करनी चाहिए। और जब पाकिस्तान को भी ये लगे कि जो यूनाइटेड नेशन और दूसरी बातें जो वो करते हैं आज, जब उनको भी लगे जनरल मुशर्रफ की तरफ से, जैसे उन्होंने कहा था जनरल मुशर्रफ ने एक बार कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन आजकल के ज़माने में नहीं चलता है। आजकल के ज़माने में जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी, हमारे मुल्क के लोगों की मर्जी और पाकिस्तान के लोगों की मर्जी को देख के किस तरह से हम इज्जत से बसर कर सकें। और मुझे मालूम है हमारे मुल्क में इतनी बड़ी वुसअत है, इस डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में इतनी बड़ी स्पेस है कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो ख्वाब है, इज्जत से जीना चाहते हैं, मसले को हल करके जीना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी जमहूरियत में इतनी आज़ादी होगी जितनी इसमें है। और आज मोदी जी जो यहाँ पर हैं, अगर वो चाहेंगे, इस वक्त जो चाहते भी हैं, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में न सिर्फ खून खराबा बंद हो जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में ये मसला हल हो सकता है। और ये जो आपस में गुत्थम गुत्थी होती है, लड़ाई होती है, क्योंकि मेरी आपसे भी गुजारिश है जो मीडिया यहाँ पर है कि जम्मू कश्मीर में हमें अमन, हमें वहाँ के जवान, वो बच्चे मैंने देखे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे जुलूसों में होते थे, जब मेरे साथ कोई नहीं होता था, जब मैं ऊपर जंगलों में जाती थी, यही लड़के सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं होती थी, ये लड़के मेरे साथ जंगलों में मेरे साथ मेरी ढाल बन के आते थे, बाजी बाजी बुलाते थे। आज उन्हीं बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं को कहा जाता है अब आर्मी कैंप है। उनको मुझसे उम्मीदें हैं, वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, मैं उनसे नाराज हो सकती हूँ, मगर मेरी गुजारिश है आप भी थोड़ा संयम से काम ले। कोई ऐसी बात न हो जिससे खुदा ना खास्ता आग में घी डालने का काम होता है। मुझे मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे भी कहूँगी, मुझे मौका दीजिए। और मैं कश्मीर में उन बच्चों से भी कहती हूँ जो मेरे जुलूसों में आगे पीछे होते थे, जिनकी माएँ मेरे पास आती थी कि हमारा बच्चा टास्क फोर्स ने उठाया, हमारे बच्चे घर से नहीं जा सकते हैं, हमें बचाइए, और हमने बचाया। मैं उन जवानों से भी गुजारिश करती हूँ, मुझे मौका दो। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए मुझे सरकार बनाए हुए, और ये इतना बड़ा बवाल आ गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद कर लीजिए जम्मू कश्मीर में। मैम, what kind of reach out are you expecting from the Prime Minister? मैम, सेपरेटिस्ट के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। देखिए, मैं तो कहते हैं, जब आप कहते हैं सबके साथ बातचीत होनी चाहिए, मगर वो तो उन लोगों को डिसाइड करना है क्या वो बातचीत करना चाहते हैं। आज एक कॉल आ गई है, आप जी बादामी कैंप जो आर्मी कैंप है उसका घेराव करो, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। आप एक तरफ से बच्चों को बोलोगे सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पे घेराव करो, पुलिस स्टेशनों पे हमला करो, जहां आपको मालूम है कि जितना भी रेस्ट्रेंट बरतने के बावजूद खुदा ना खासा किलिंग होगी। तो ये तो उनको भी सोचना है कि किलिंग अगर रोकनी है तो उसमें तो उनका भी सपोर्ट चाहिए हमें। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर ने क्या प्रॉमिस किया आपको? मानती है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है अब, क्योंकि आज जो घटना हुई, जो पुलिस वाला अपने घर से बिना वर्दी के निकला, अगर उसे खुल के गोली मार दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता है, तो आप क्या मानती हैं कि किन से बात की जाएगी और क्या ये व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है? देखिए, उनसे बातचीत होना चाहिए जो इस मसले का डायलॉग और पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, और वो 95% से ज्यादा लोग हैं। जो लोग इस वक्त बच्चों को सड़क पे पत्थर मारने के लिए निकालते हैं, जिनके लिए मसला कश्मीर नहीं है, उनके लिए कारोबार है। दिन को कितने लोग जख्मी हो जाए, कितने लोग मरे, वो उनको उसकी खरीदारी करते हैं। सॉरी, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन 5% लोगों के प्रति सख्ती, उनके प्रति सख्ती क्यों नहीं कर रही हैं? पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, आप ये कह रही है
नहीं, मेरे ख्याल में मोदी जी ने तो इनिशिएटिव ले लिया। वो तो लाहौर चले गए, हमारे होम मिनिस्टर लाहौर चले गए। अब तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। मैम कर्फ्यू कब हटेगा? मैम 50 डेज होने आपको आए, कर्फ्यू कब हटेगा? देखिए, जो कर्फ्यू है उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं उनकी जान बचाई जाए। जब आप कॉल देते हैं फलानी कैंप पे हमला करो, उधर घेराव करो, पुलिस स्टेशन में जाते हो, क्योंकि पहले दिन हमने कर्फ्यू इसलिए लगाया था कोई कैजुअलिटी ना हो, और हमें नहीं मालूम था कि इन बच्चों को पुलिस स्टेशन पे सीआरपीएफ कैंपों पे उकसाया जाएगा कि वो करें। अगर हम नहीं कर्फ्यू करें तो क्या करें? मैम, अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कोई मैम कार्रवाई होगी मैम? सॉरी, Why don't you talk to likes of Mirwais Umar Hussain, Mirwais Umar Farooq, etc. I know, but why don't you? I mean, forget about the government of India, but why don't you? You are the popular CM, ma'am. You have the mandate, you have the muscle. Why don't you speak to them? नहीं, देखिए, जो यहाँ से बात होगी, क्योंकि मेरे साथ क्या मसला है, मेरे पास तो हम तो जम्मू कश्मीर के, हम इस मुल्क के आईन को मानते हैं, तो जो उनको बात करनी है वो तो यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, उसमें यासीन मलिक साहब थे, उमर फारूक साहब, बिलाल गनी लोन, सजाद गनी लोन जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, इसी तरह प्रोफेसर भट्ट, बहुत सारे लोग थे। Ma'am, do you think time has been lost? It's been 50 days. मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के जवानों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, उनके दिल में अगर कोई है, अगर इंसानियत है, मुझे लगता है ये जो रोज पत्थर मारने के लिए हमारे जवानों को उकसाया जाता है, उनको थानों की तरह, अगर प्रोटेस्ट करने हैं पुरअमन तरीके से कर लें। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। मुफ्ती साहब के एज अ मदर, जो एक माँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई बच्चा 15 साल, 20 साल, 18 साल, उसको ये बताया जाता है कि अगर आप किसी कैंप में जाके पत्थर मार के अगर आप मर जाओगे मसले कश्मीर हल हो जाएगा। मासूम बच्चे हैं ये 2002 से लेके 2005 तक गिलानी साहब बाहर थे, कभी हाउस अरेस्ट नहीं किया। यासीन मलिक बाहर था, मगर कहीं ना कहीं जो उस वक्त हमने पॉलिटिकल प्रोसेस चलाया था वाजपेयी जी के साथ, गवर्नेंस चलाई थी, तो लोगों को लग रहा था नहीं, मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी कोई जम्मू कश्मीर का हल ढूंढ रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। मगर वो प्रोसेस जब रुका, अब बदकिस्मती से पिछले 1 साल में जब हमारी सरकार बनी, कुछ ऐसे मामलात हो गए कि जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है उस पे उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। तो मुझे आज वजीर आजम ने ये भी एश्योरेंस दिया कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस है मुफ्ती साहब और इनके बीच में, उसमें भी काम होगा, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, और मुझे उम्मीद है कि हम जम्मू कश्मीर जो सोचा था मुफ्ती साहब ने, इस खून खराबे से निकल पाएंगे। सॉरी, अरे मेरे भाई, मुझे जम्मू कश्मीर संभालने दो। मैडम, राजनाथ सिंह वहाँ गए, आप यहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात की, क्या प्रधानमंत्री आपकी मुलाकात में किसी बड़े ऐलान की कोई घोषणा है, संभावना? वो तो वही कह सकते या हैं, फिर प्रधानमंत्री जाएंगे कश्मीर में? नो, तो वो कह सकते हैं, मैं उनके बदले प्राइम मिनिस्टर बहुत कंसर्न है, बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है जितनी हमें तकलीफ है उतनी उनको भी तकलीफ है, क्योंकि रोज जो मरते हैं वो जवान बच्चे हैं, उनके मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जिस तरह से उनको बताया जाता है कि आज नहीं बस कल होने वाला है मसला हल, बस आज आप निकलो सड़क पे कल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसको रोकना है, और इसमें हम अकेले नहीं रोक सकते। आप बातचीत की बात कर रही हैं, अरेस्ट भी कर रही हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैंने पहले भी कहा 95% लोग जो हैं पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, जिनके साथ डायलॉग होना चाहिए, चाहे वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है। मगर जो 5% लोग ऐसे हैं जो उकसाते हैं, इन बच्चों को सड़क पे निकालते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं, उनके बच्चे तो कोई नहीं मैंने देखा। जो लोग इन बच्चों को उकसाते हैं ये गरीबों के बच्चे हैं। 95% जो लोग अभी तक बच्चे मारे गए वो गरीबों के बच्चे हैं, जो सड़क पे जख्मी हुए वो गरीबों के बच्चे हैं। बाकी ने तो बच्चे अब मुल्क के कोने कोने में उनके बच्चे पढ़ते हैं।
हर जगह उनके मैम सेपरेटिस्ट मैम ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए कोई टाइम सॉरी नहीं, आई एम नॉट। मैम ऑल पार्टी डेलीगेशन कब तक जा रहा है? ऑल पार्टी डेलीगेशन मेरे ख्याल में वो हम डिस्कस कर रहे थे, कोई हफ्ता 10 दिन का, ताकि वहाँ भी थोड़ा सा जो है इंशाल्लाह जाएगा। मैंने कहा उन सब से बातचीत होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर की समस्या का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, डायलॉग चाहते हैं, मगर उसके लिए सेपरेटिस्ट को भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जान बचाने में हमारी मदद करनी चाहिए। थैंक यू।